গণতন্ত্রের চতুর্থ স্তম্ভ বলে পরিচিত আর সেই সংবাদ মাধ্যমকেও অপমান রাহুল গান্ধীর। রাহুলের ভাষায় সাংবাদিকেরা হলেন মোদির চামচা আর চামচি। দেশের প্রধানমন্ত্রীর সাক্ষাৎকার নিলেই সাংবাদিকেরা রাহুলের কাছে চামচা হয়ে যায় নাকি? आपने नरेंद्र मोदी जी के इंटरव्यू देखे वो जो चमचों वाले इंटरव्यू हैं, देखे नहीं देखे? वहां पे नरेंद्र मोदी जी बैठते हैं, 4 चमचे आ जाते हैं, देखे आपने? শুনলেন রাহুল গান্ধীর ভাষা, সাংবাদিকেরা নাকি মোদির চামচা। আরো একবার শুনুন জনসভা থেকে কি বললেন কংগ্রেসের শেহজাদা। आपने नरेंद्र मोदी जी के इंटरव्यू देखे वो जो चमचों वाले इंटरव्यू हैं, देखे नहीं देखे? वहां पे नरेंद्र मोदी जी बैठते हैं, 4 चमचे आ जाते हैं, देखे आपने? उसमें नरेंद्र मोदी अलग अलग बयान देते हैं। उनसे पूछा, वो एक चमचे ने पूछा, मोदी जी हिंदुस्तान में अमीर लोग अमीर होते जा रहे हैं, गरीब लोग गरीब होते जा रहे हैं, आपकी इस पे क्या राय है? नरेंद्र मोदी जी ने 30 सेकंड सोचा, फिर कहते हैं मैं सबको गरीब कर दूं। আচ্ছা, তাহলে এটাই হলো রাহুল গান্ধীর ভালোবাসার দোকান। ভালোবাসার দোকানে এত বিষ, যেখানে গণতন্ত্রের চতুর্থ স্তম্ভকেও রেয়াত করছেন না রাহুল। রাহুলের যারা পরামর্শদাতা, সেই জয়রাম রমেশ কিংবা মল্লিকার্জুন খার্গে, তাকে কি তাহলে সৌজন্য শেখাতে ভুলে গেছেন? সংবাদ মাধ্যমের দোষটা কি? দোষটা হলো তারা দেশের প্রধানমন্ত্রীর সাক্ষাৎকার দেখিয়েছেন। গত 1 থেকে 1.5 মাসে 71টি ইন্টারভিউয়ের মুখোমুখি হয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। সাক্ষাৎকারে চারিদিক থেকে এসেছে প্রশ্নবাণ। এমন নয় যে জল ভাত প্রশ্ন অপেক্ষা করেছিল প্রধানমন্ত্রী মোদির জন্য। চীন থেকে পাকিস্তান, রাশিয়া ইউক্রেন যুদ্ধ থেকে ইসরায়েল হামাস যুদ্ধ, বিদেশ নীতি থেকে মূল্য বৃদ্ধি কিংবা ইলেকটোরাল বন্ড থেকে সংরক্ষণ, লোকসভা নির্বাচনে যা যা ইস্যু, সেই সবই প্রশ্নের মুখোমুখি হতে হয় প্রধানমন্ত্রীকে। তৃতীয়বার ক্ষমতায় এসে মোদি সরকারের নীতি বা স্ট্র্যাটেজি কি হবে তাও জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী মোদি। অন্যদিকে রাহুল গান্ধী, যিনি একটু ইন্টারভিউয়ের মুখোমুখি হননি, যদিও বিদেশের মাটিতে দাঁড়িয়ে একান্ত সাক্ষাৎকার দিতে পেরেছেন, আর সেখানে দেশের নিন্দা করতে কার্পণ্য করেননি রাহুল। প্রশ্ন হলো, যিনি বিদেশে কথা বলতে পারেন তিনি দেশের সংবাদ মাধ্যমকে এত ভয় পাচ্ছেন কেন? রাহুল হয়তো ভুলে গেছেন কংগ্রেসের যিনি চোখের মণি, সেই সুপ্রিয়া শ্রীনেত রাজনীতিতে আসার আগে একজন সাংবাদিকই ছিলেন। তালিকায় আরও আছে সাগরিকা ঘোষ কিংবা আশুতোষ, তারাও তো সাংবাদিকই ছিলেন। রাহুল অবশ্য রাহুল গান্ধী আর কোন দিনই বা ইতিহাস জেনে কথা বলেছেন? তাই এবারও পাপ্পুগিরি জিন্দাবাদ। রিপাবলিক বাংলা। ভোট সপ্তমীর আগে খোলামেলা সাক্ষাৎকার নরেন্দ্র মোদীর দিল্লিতে 7 নম্বর লোক কল্যাণ মার্গের বাসভবনে। একের পর এক চোখা প্রশ্ন, যার সোজা শব্দ জবাব দিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। দুর্নীতি থেকে 370 ধারা, মুখোমুখি হতে হয় এমন বহু প্রশ্নের। बंगाल के चुनाव में टीएमसी पार्टी अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। आपने देखा होगा पिछले असेंबली के चुनाव में हम 3 थे, 3 में से बंगाल की जनता ने हमें 80 पर पहुंचा दिया। हमें लोकसभा के अंदर भारी बहुमत पिछले चुनाव में मिला था। इस बार पूरे हिंदुस्तान में द बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट कोई होगा तो पश्चिम बंगाल होने वाला है। भारतीय जनता पार्टी को सर्वाधिक सफलता पश्चिम बंगाल में मिल रही है और पश्चिम बंगाल का चुनाव एक तरफा है, जनता जनार्दन उसको लीड कर रही है और उसके कारण सरकार में बैठे हुए लोग, टीएमसी के लोग बौखलाए हुए हैं। लगातार हत्याएं हो रहे हैं, हमले हो रहे हैं, भाजपा कार्यकर्ताओं को चुनाव के पहले जेलों में बंद कर दिया जा रहा है। ये सारे जुल्मों के बावजूद भी मतदान भी जनता ज़्यादा कर रही है और वोट भी ज़्यादा हो रहा है। सर, ये सिर्फ ये 5-4 परिवारों का ही एजेंडा था जी। ये न कश्मीर की जनता का एजेंडा था, न देश के लोगों का एजेंडा था। ये अपने फायदे के लिए ये 370 की ऐसी एक दीवार बना के बैठे थे ताकि कोई झोंक न पाए, और कहते थे 370 हटेगी तो आग लग जाएगी। वो कहते थे 370 हटेगी तो कश्मीर चला जाएगा। आज ये सत्य हो गया कि 370 हटने के बाद ज़्यादा एकता की अनुभूति हो रही है, कश्मीर के लोगों का अपनापन ज़्यादा बढ़ रहा है और इसलिए इसका सीधा परिणाम चुनावों में भी दिखाई देता है।
टूरिज्म में दिखाई दे रहा है। G20 समिट वहाँ होती है, बड़े शान से कश्मीर ने उनका स्वागत किया पूरी दुनिया का। और इसलिए ये कैसे झूठी दीवारें खड़ी कर करके देश को टुकड़ों में देखा गया, इसका ये उदाहरण है और उसको मैंने ध्वस्त किया है। मोदी सरकार का मैंडेट क्या है? मोदी सरकार ने अपने अफसरों को कहा है कि मेरी सरकार करप्शन के विषय में जीरो टॉलरेंस। अब ये दफ्तर के अंदर बैठे हुए लोगों का काम है कि उसको लागू करें। और सचमुच में तो किसी ज़माने में 10 साल में मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, 34 लाख रुपया पकड़े गए थे। 34 लाख रुपया मतलब एक स्कूल बैग में आप आ जाए। वर्तमान में ईडी ने 10 साल में 2200 करोड़ रुपया पकड़ा है। ये तो टीवी पर दिखता है, ये तो कोई झूठबाजी हो नहीं सकती है। अब जो 2200 करोड़ देश को वापस लाया है, ये उसका सम्मान होना चाहिए, उसको गाली गलौज होना चाहिए। तो गाली गलौज कौन करता है? जिसका पैसा गया है वो गाली गलौज कर रहा है। 2200 करोड़ जिसके जेब में से गया है, जिसने चोरी कर करके इकट्ठा किया था, वो पकड़ा गया, वो चिल्ला रहा है। इसका मतलब ये जो चोर पकड़े जा रहे हैं, इसमें जिसकी भागीदारी होगी वो चिल्लाएगा। आखिरी दौर शब्द प्रयोग किया आपने, मुझे उसमें बहुत सी चीज़ें नज़र आ रही है। एक, हमारा एक नया दौर शुरू होगा, उसका उसके अंदर संकेत है। दूसरा, जो लोग बड़े सपने देख करके बड़े वादे कर रहे थे, उनके लिए भी आखिरी दौर है। तो चुनाव का आखिरी दौर ऐसा इतना नहीं, उनकी स्थितियों का भी आखिरी दौर है।